everybody, welcome to our channel Rocket Babies. I'm Sunita Ghosh. So parents, मार्च का मंथ आ चुका है एंड यूजुअली इंडिया में न्यू सेशन, स्कूल का न्यू सेशन जो है वो अप्रैल से स्टार्ट होता है, कई बार मार्च एंड से नहीं तो अप्रैल से स्टार्ट होता है. तो आई एम श्योर देयर आर लोड्स एंड लोड्स ऑफ किड्स who are ready to go to school for the first time. And there are parents who are scared, who are anxious, who are confused, who are basically having lots and lots of thoughts because they know that their dear kid is going to school, a formal school for the first time. And they want this transition in their life, जो इनका इतना बड़ा transition है life का. The parents want कि transition जो है वो easy हो, आराम से निकल जाए और हमारा बच्चा जल्दी से जल्दी स्कूल में settle हो जाए. तो firstly, all kids are different. Some take very less time to settle and some take a lot of time to settle. But at the end of the day, ये जरूर याद रखिएगा कि हर बच्चा कभी ना कभी जरूर सेटल हो जाता है. तो पेशेंस इज द की हेयर, बट स्टिल देर आर फ्यू पॉइंट्स. प्रिसाइसली इन माई वीडियो देर आर 14 पॉइंट्स दैट आई वॉन्ट टू मेंशन, and these are those points which will make this transition a little easier, but still you will see crying, you will see anxiety, you will see nervousness, scared feeling, everything you will see in your child. So that is absolutely normal, but still there are few things that you could do to make this transition easier. So our video is about that. So without wasting any time, let's start with the video. So the first point that I want to mention is कि allow the school staff to make a relationship with your kid. तो जब आपका बच्चा पहली बार स्कूल जाएगा तो they might be leaving their playgroup behind, they might be leaving their nanny behind, they are obviously leaving you behind. So obviously there would be a lot of comparisons, and sometimes kids, you know, tend to tell few things about the staff, about the teachers, about the school, which basically they are trying to convince you कि school अच्छा नहीं है, I don't want to go to school because school में ऐसा होता है वैसा होता है. So what my recommendation would be, don't judge the school or the staff there from the first day itself. Give them some time. क्योंकि बच्चों के साथ रिलेशनशिप बनाने में थोड़ा टाइम लगता है. तो इट्स ओके इफ एट फर्स्ट दे आर कंप्लेनिंग. दे वुड बी यही बच्चे कुछ टाइम के बाद दे वुड बी टेलिंग अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स अबाउट द स्टाफ, अबाउट द स्कूल. सो हैव पेशेंस. डोंट स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग द स्टाफ और द स्कूल फ्रॉम द फर्स्ट डे इटसेल्फ. My second point would be always let the kid know that you are leaving. तो यूजुअली जैसा मैंने प्ले ग्रुप में एक्सपीरियंस किया था कि प्ले ग्रुप में उन्होंने क्या किया कि इनाया को बोला कि प्ले एरिया में खेलने दो, एंड आफ्टर सम टाइम वन ऑफ द नैनीज केम एंड शी सेड दैट यू कैन लीव नाउ. सो बेसिकली दे मेड मी लीव इनाया विदाउट एक्चुअली टेलिंग हर दैट आई एम लीविंग. क्योंकि उस टाइम पे मुझे इतना आइडिया नहीं था, आई लेफ्ट. बट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग दिस इज नॉट अ गुड आइडिया. Although when you will tell the kid कि you are leaving for the day, so they would be crying, they would be scared, but still you know बता के जाना is better than नहीं बता के जाना. Because I feel कि जब बच्चा जो है जिसको पूरे टाइम आदत है आपके साथ रहने की, जब एकदम से आप गायब हो जाओगे तो वो बहुत नर्वस हो जाता है, बहुत स्केर्ड हो जाता है, क्योंकि बिल्कुल अननोन है उसके सामने फ्यूचर. तो ऑब्वियसली वो डर जाता है. उसी की जगह अगर आप उसको बताओगे क्लियरली कि आई एम लीविंग बट आई बी बैक in few like minutes or few hours to pick you up and get you back to home, तो at least उसको ये आइडिया रहेगा कि ठीक है कुछ टाइम मैं यहाँ पे हूं, उसके बाद I'll be back with my mom. तो always leave after telling your kid. My third point is कि क्योंकि बच्चे पहली बार स्कूल जा रहे हैं तो they have no idea about school. तो it is very good way to actually tell school routine to kids. कि यूजुअली उनको एक्सप्लेन करो कि जब आप स्कूल जाते हो तो पहले सारी क्लास मिलके प्रेयर करती है, then you would have some you know fun time, you would have some study time, you would have a break in which you can have your food, you would have different activities scheduled, and you know this is how like after this much time there would be a bell where you know maybe you get shifted to a walker area, and then finally the parents start coming and you will be back with me. तो बेसिकली स्कूल रूटीन समझाने का मकसद एक ही है कि अननोन से हमेशा सबको डर लगता है, बी इट किड्स बी इट एडल्ट्स. तो अगर आप इस पूरे एक्सपीरियंस को थोड़ा नोन बताओगे बच्चों के लिए तो ऑब्वियसली उसके पास होगा लुक फॉरवर्ड कि चलो ठीक है अब
आई थिंक अब मैं खाना खा रहा हूं तो टाइम पास हो रहा है, तो आफ्टर सम टाइम माई मॉम विल बी देयर टू गेट मी बैक। सो इसीलिए स्कूल रूटीन बताना जो है वो बहुत जरूरी है, ताकि बच्चों के लिए ये अननोन की जगह एक नोन टेरिटरी बन जाए। My next advice would be that have enough morning time during the first few days obviously. तो जैसे अब इनाया is in class 1, so obviously we just keep a proper time जिसमें हमें पता है कि वो freshen up हो जाएगी, she'll have a breakfast, she'll get ready and she'll be going to school. तो कुछ extra time रखने की जरूरत नहीं होती है, but starting में क्योंकि kids will be cranky तो थोड़ा सा सुबह के टाइम का ड्रामा होगा। Then secondly जब हम बहुत जल्दी जल्दी में तैयार करते हैं बच्चों को तो वैसे ही बच्चे एंजाइटी में चले जाते हैं, और उसके बाद स्कूल जाने की एंजाइटी, तो बहुत ज्यादा एंजाइटी बिल्डअप हो जाता है, जिसकी वजह से मॉर्निंग टाइम जो है वो बहुत ही ज्यादा नर्वसनेस के साथ और बहुत ही बेकार हो जाता है। तो इट्स बेटर कि थोड़ा टाइम लेके उठो, बच्चे को उठाओ और उसके साथ धीरे धीरे उसको तैयार करो, उसके साथ बात करो, उसको थोड़ा कंफर्टेबल फील कराओ, ताकि धीरे धीरे जो है वो तैयार हो और सिर्फ वही नर्वसनेस रहे कि उसको स्कूल जाना है, बट वो नर्वसनेस ना रहे कि वो लेट हो रहा है और आप डांट रहे हो, जल्दी तैयार हो, और ये सब वाली चीज जो है उसको आप अवॉइड करो। तो बेसिकली आपको स्टार्टिंग में जो मॉर्निंग का टाइम है वो काफी इजी रखना है, तो इसीलिए ज्यादा टाइम दे बिफोर द किड गेट्स रेडी टू फॉर स्कूल। My next advice would be in case your kid is very attached to yourself, some kids go with a lot of separation anxiety and some kids don't। तो usually क्या होता है कि जैसे joint family है, तो joint family में बच्चों को आदत होती है कि मम्मा पापा के अलावा कभी दादा दादी के साथ है, कभी some other uncle aunts के साथ है, तो they are used to that separation time with their parents। बट जो न्यूक्लियर फैमिली के बच्चे होते हैं यूजुअली उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उनके साथ मम्मा या पापा जो है वो फुल 24 आवर्स उनके साथ होते हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट उन बच्चों में सेपरेशन एंजाइटी ज्यादा होती है। इन बच्चों को डील करने के लिए यू कैन गिव समथिंग दैट कनेक्ट्स। तो मे बी इट कुड बी जस्ट अ हैंड रिटन नोट कि ठीक है बेटा, जब भी आपको मेरी याद आए, वेन एवर यू आर मिसिंग मी, तो यू सी दिस नोट एंड यू जस्ट फील कि यू आर देयर, आई एम देयर विथ यू। सो दैट काइंड ऑफ कनेक्शन फीलिंग कुड बी फ्रॉम एनीथिंग, अ वेरी स्मॉल थिंग, अ वेरी स्मॉल टोकन विच बेसिकली कनेक्ट्स यू बोथ। सो दिस इज आई थिंक ऑल्सो अ गुड आइडिया, जिसमें बच्चे को अगर थोड़ा सा डर लगता है, थोड़ा सा स्कैरी फीलिंग आती है, तो बच्चा उस चीज को होल्ड करके थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। My next advice would be never compare kids. So there would be loads of kids from the first day itself, they would be saying bye to their parents and happily going to the school. And there would be loads of kids जो कि इतना रो रहे होते हैं कि it is really sad seeing them in this situation for the parents plus for the onlookers as well कि मतलब देखते कि बच्चा इतना ज्यादा दुखी हो रहा है, इतना ज्यादा परेशान हो रहा है, तो हर एक टाइप के बच्चे आपको मिलेंगे। तो इसीलिए कंपेयर करना कभी मत स्टार्ट करना अपने बच्चे को कि ये देखो आप रो रहे हो, आपका फ्रेंड तो देखो हंसते हंसते स्कूल जा रहा है। तो नेवर कंपेयर, नेवर हैव दैट काइंड ऑफ फीलिंग, दैट काइंड ऑफ कन्वर्सेशन विथ योर किड्स। इसका कोई पॉजिटिव इंपैक्ट कभी भी नहीं होता है, सिर्फ नेगेटिव इंपैक्ट होता है। तो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो कि मुझे लगता है कि हर लाइफ के चीज के लिए इंपॉर्टेंट है कि कभी अपने बच्चे को किसी और बच्चे से कंपेयर मत करो। My next advice would be that if your kid is starting school for the first time, it is a very good idea to get in touch with the teacher and get, some numbers of some of the parents, so that basically what you can do is connect with those parents and, they would be sailing in the same boat. उनका भी वही हाल है कि हमारा बच्चा जो है फर्स्ट टाइम जा रहा है, तो उसके लिए बिल्कुल अननोन है। तो अगर आप मिल सकते हो, कुछ प्ले डेट्स अरेंज कर सकते हो, अभी भी टाइम है स्कूल स्टार्ट होने में, नया सेशन स्टार्ट होने में, तो जस्ट मीट विद देम, हैव किड्स डू सम प्ले एरिया। तो उसके वजह से क्या होगा कि जब आपका बच्चा स्कूल जाएगा एंड ही इज स्कैर्ड, अगर कुछ सिमिलर फेसेस उसे देखने को मिलेंगे, सम फेसेस जो उसने पहले देखे हैं, जिससे वो मिला है, जो उसके थोड़े थोड़े फ्रेंड्स बनने लगे, तो आपका किड विल बी मोर रिलैक्स्ड एज कंपेयर टू कि वो किसी को नहीं जानता। तो आई थिंक इट वुड बी अ वेरी गुड आइडिया टू मीट अप विद सम पेरेंट्स एंड अरेंज सम प्ले डेट्स फॉर योर किड्स। My next advice would be always have a good communication about school with your kids. तो although आपका kid जो है वो पूरे दिन रो के आया है स्कूल से, but still it is very good to have a good conversation with them. Just ask them what happened, and apart from that part where the kid was struggling, also try to talk about the routine कि okay आप बताओ आपके स्कूल में क्या क्या होता है, आपकी मैम क्या करती है, आपकी क्लास में बच्चे कैसे हैं, आपके स्कूल में कौन कौन से टॉयज है जिनसे आप प्ले करते हो।
एक कोई हैप्पी मोमेंट के बारे में बताओ जो आज आपको अच्छा लगा। इवन टॉक अबाउट किड्स प्रोग्रेस। तो जैसे कि अगर इनाया की मैं बात करूं तो इनाया ऑल्सो टुक सम टाइम टू सेटल। तो देयर वर फ्यू डेज व्हेन शी वाज क्राइंग द होल डे। तो देन आई ऑलवेज यूज टू स्पीक टू हर कि आज भी आप पूरे दिन रोए क्या? ओके नो इश्यूज, बट यू स्पेंड द होल डे एट स्कूल। बट देन शी केप्ट ऑन सेइंग कि आज मैं फर्स्ट हाफ में रोई, बट आफ्टर ब्रेक मुझे रोना नहीं आया। सो धीरे धीरे करके ये प्रोग्रेस करते हैं बच्चे। तो उनसे उस प्रोग्रेस के बारे में जरूर डिस्कस करो और उनको अप्रिशिएट करो अगर वो कोई भी प्रोग्रेस कर रहे हैं। My next advice would be that it's very good idea to share your stories with your kids. तो आपको अगर आपकी स्टोरीज याद है कि आप स्कूल में जब गए थे तो आप किस इमोशन से गो थ्रू हुए थे, ट्राई टू मेक अप सम स्टोरीज, ट्राई टू टेल देम सम एक्सपीरियंसेस ऑफ योर लाइफ। बिकॉज सबसे ज्यादा अगर किड किसी से कनेक्ट करता है तो वो उसके पेरेंट्स हैं। तो जब उसके पेरेंट्स जो है वो उसको बताते हैं कि हाँ मुझे भी स्कूल जाने में बहुत दिक्कत होती थी, आई यूज टू हैव प्रॉब्लम मेकिंग फ्रेंड्स, आई यूज टू हैव प्रॉब्लम सेटलिंग एट स्कूल, बट धीरे धीरे मुझे ये अच्छा लगा वो अच्छा लगा। तो दे वुड लर्न अ लॉट फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। ऑल्दो हर एक का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है और हर एक इंसान, चाहे वो आपका बच्चा हो चाहे आप हो, अपने एक्सपीरियंस से ही सीखता है। बट स्टिल जब आप उसको अपने एक्सपीरियंस से बताते हो कि मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम्स थी, तो एटलीस्ट उसे लगता है कि वो अकेला नहीं है। ऑलवेज टेल देम कि दे आर नॉट अलोन इन दिस। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो इस फीलिंग से जा रहे हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा है, उनको अपने मम्मी पापा को छोड़ने का मन नहीं करता है, तो इट्स ओके टू फील दैट वे। बट धीरे धीरे आपको मम्मी पापा को छोड़ने से ज्यादा स्कूल जाना अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि आपके फ्रेंड्स से मिलोगे, अपने टीचर्स से मिलोगे, आप डिफरेंट एक्टिविटीज करोगे। तो बेसिकली उनको अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें जब आपका बच्चा जो है वो स्कूल स्टार्ट करने वाला। My next advice would be let them master some of the basic skills। क्योंकि अभी तक बच्चा जो है वो घर पे था तो बहुत सारी चीजें आप उसके लिए करते थे। कई बार आप ही उसको खिला रहे होते हो, आप उसको वॉशरूम ले जा रहे होते हो, आप उसको कपड़े पहना रहे होते हो। धीरे धीरे करके उसको ट्राई करो कि वो इंडिपेंडेंट हो। जैसे उसको वॉशरूम जाना पड़ेगा अगर स्कूल में, तो यूजुअली जब स्टार्टिंग होता है तो दीदीज होती हैं, बट स्टिल किड्स आर मोर कंफर्टेबल अगर उनको पता हो कि कैसे उनको हैंडल करना है ये सिचुएशन। तो दैट मेक्स देम दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस। सेम इज द केस विथ ईटिंग फूड। तो यूजुअली अगर कोई बच्चा नहीं खा पा रहा होता है तो दीदीज मैम्स उनको हेल्प जरूर कर देती है। बट अगेन इट्स बेटर इफ योर किड इज अवेयर ऑफ हाउ टू ईट देमसेल्व्स एंड देन दे फील कॉन्फिडेंट ईटिंग देमसेल्व्स। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि अपने पैंट का जिप कैसे बंद करना है, अपना बैग कैसे पैक करना है, टॉयलेट कैसे जाना है, खाना कैसे खाना है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बच्चों को अगर आप सिखाओगे फ्रॉम दी स्टार्टिंग इटसेल्फ बिफोर गोइंग टू स्कूल, तो दैट वुड गिव हिम दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस कि वो इंडिपेंडेंटली अपने आप को स्कूल में हैंडल कर सकता है। My next advice is that at this particular time when the kids are starting with school, they are going through a lot of anxiety, lot of nervousness, lot of scared feelings, lot of stress. तो उस वजह से यू विल सी अ डिफरेंट किड इट एट योर होम। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। देयर वुड बी मूड स्विंग्स, देयर वुड बी चेंज इन ईटिंग हैबिट्स, यानी कि बच्चा पहले खूब मांग के खाता था क्योंकि खुश था, अभी वो स्ट्रेस में है, इसलिए मे बी उसका ईटिंग जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। सेम इज द केस विद स्लीपिंग पैटर्न। जब बच्चा घर पे था, कोई टेंशन नहीं थी, कोई स्ट्रेस नहीं था, तो आराम से सोता था। अब हो सकता है कि क्योंकि अभी वो थोड़ा स्ट्रेस लेवल में है तो उसके स्लीपिंग पैटर्न्स थोड़े डिफरेंट हो जाए। तो यू हैव टू बी वेरी पेशेंट विद दीज थिंग्स। प्लस घर पे उसको थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट दे दो। जो चीजों के लिए आप उसको सिखाते थे कि जैसे बेटा ये ऐसे करो, अपने टॉयज जगह पे रखो, ये करो, अगर वो उस टाइम पे नहीं कर रहा है तो let it go for some days, because already they are going through a lot in that first half of the day when they are at school. So it's important कि आप उसको थोड़ा relaxed और stress free environment दें घर पे। Last but not the least is always talk to their teachers. तो it's very important to have a good conversation with their teachers. Time to time आप feedback लेते रहो, क्योंकि कई बार जो है वो बच्चे जो है वो अपना प्रोग्रेस जो है वो नहीं कन्वे कर पाते, लेकिन टीचर्स जो हैं वो उनका प्रोग्रेस जरूर कन्वे कर देते हैं कि हाँ स्टार्टिंग में बहुत परेशान रहते थे, अब यूजुअली ठीक रह रहे, या फिर स्टार्टिंग में आके रोते हैं लेकिन फिर द अदर पार्ट ऑफ द डे दे आर हैप्पी, दे आर डूइंग एक्टिविटीज। तो बच्चों के सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन जो वो पास कर रहे हैं सिर्फ उसी से मतलब उसी को सिर्फ फुल इन्फॉर्मेशन मत मानिए, जरूर टीचर्स के साथ जो है वो कन्वर्सेशंस करिए ताकि आपको प्रॉपर और रियल इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे।
तो ये थे मेरे कुछ एडवाइसेस। ये टाइम जो है वो बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ है, बिकॉज ऑब्वियसली देयर इज अ वेरी बिग ट्रांजिशन इन देयर लाइफ। तो आई होप कि हमारे इस वीडियो से आपको जरूर थोड़ा बहुत हेल्प मिलेगा। अगर हाँ तो जरूर लाइक बटन पे क्लिक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को और एंजॉय करिएगा इस हैप्पी वर्ल्ड ऑफ पेरेंटिंग को। टॉक इट बेबी रॉक्स।